ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ پاٹل نے واپس آ کر شام کو کچھ تازہ اخبارات میرے لیے منگوائے اور مجھے تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ اپنے انتظامات کا جائزہ لینے گیا تھا۔ میں نے اخبارات سامنے پھیلا دیے۔ یہ ذرا سنسنی خیز خبریں شائع کرنے والے اخبارات تھے۔ قریباً سبھی کی چیختی چلاتی سرخیاں مضافاتی بستی کے اس دھماکے کے متعلق تھیں جس میں پولیس کے 7 کرمچاری مارے گئے تھے اور ارد گرد کئی مقامات کو نقصان بھی پہنچا تھا، یا پھر مکتی باہنی کے جعلی بہادری کے کارنامے تھے اور پاکستانی افواج کے متعلق فرسودہ اور گھڑے گھڑائے ظلم و ستم کی کہانیاں۔ ایک بات پر البتہ مجھے ضرور حیرت تھی کہ ونگ کمانڈر باٹلہ کے ہاں ہونے والی چوری یا ڈاکے کے متعلق معمولی سی خبر بھی کسی اخبار میں نہیں چھپی تھی۔ خاصے ہوشیار لوگ تھے وہ۔ اپنی دانست میں انہوں نے بغیر تشہیر کیے ڈاکوؤں کو قابو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان کی بے بسی پر مسکراتا رہا۔ خدا شاہد ہے، اگر ہمارا مقابلہ صرف بھارتی افواج یا انٹیلیجنس سے تھا تو ہم نے انہیں ناکو چنے چبا دیے تھے، لیکن گھر کے وہ تمام بھیدی جن میں سے ہر ایک 52 گز کا تھا خود ہی لنکا ٹھانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس لیے ہمیں ان راونوں کو سنبھالنا خاصا مشکل دکھائی پڑتا تھا۔ یہاں بیٹھے بٹھائے اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ گو کہ پاٹل نے اس سلسلے میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی تھیں، لیکن میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور ٹہلتا ہوا سٹور سے باہر آ گیا۔ یہاں سے چند گز کے فاصلے پر میں نے ایک پان سگریٹ کا کھوکا دیکھا تھا، وہیں سے ایک میٹھا پان خرید کر منہ میں رکھ لیا اور سٹور کے سامنے ہی چہل قدمی کرنے لگا۔ ابھی مجھے باہر نکلے چند منٹ ہی گزرے جب اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ سامنے سے گزرتی کاروں کی لمبی قطار میں سے ایک کار میں مجھے اوما کی شکل دکھائی پڑی۔ وہ خود ہی کار ڈرائیو کرتی جا رہی تھی۔ خدا جانے اس نے مجھے دیکھا بھی تھا یا صرف میرا وہم ہی تھا، کیونکہ تھوڑی دور جا کر میں نے اسے گاڑی سڑک کے ساتھ ساتھ پارک کرتے دیکھا۔ میں الٹے قدموں سٹور میں داخل ہوا اور سیدھا کیبن میں جا گھسا۔ بطور احتیاط میں نے سارے پردے گرا دیے تھے اور دروازہ بھی اندر سے لاک کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اچانک یوں دکھائی دینے سے میں کچھ بوکھلا سا گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سامنے رکھے ٹیلی فون نے ٹرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے اسے بجنے دیا، لیکن جب کسی طرح گھنٹی خاموش ہونے میں نہ آئی تو مجھے بادل نخواستہ ریسیور اٹھانا پڑا۔ ہیلو، میں نے آواز بدل کر کہا۔ پاٹل بول رہا ہوں مہاش جی، خیر سے واپسی ہو گئی؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز نے مجھے سکون بخشا اور میری ہنسی نکل گئی، لیکن اس بات کا احساس بھی ہو گیا کہ یہاں بھی پراسرار آنکھیں میری نگرانی کر رہی تھیں۔ ہاں یار، ہو گئی واپسی، لیکن بوریت کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے سہارا لینا چاہا۔ بوریت کا علم تو جناب کو تب ہوتا جب وہ کار سے اتر کر سڑک پر آپ سے بغلگیر ہو جاتی۔ خدا کی پناہ، کتنے خبردار لوگ تھے وہ۔ شاید سٹور سے باہر نکلتے ہی میرا تعاقب شروع ہو گیا تھا۔ ونڈرفل، میں نے بے اختیار کہا۔ شکریہ، لیکن اب یہیں تشریف رکھیں تو مہربانی ہوگی۔ اگر دل نہ بہلے تو چوکیدار کو اندر بلا کر اپنی ضرورت سے آگاہ فرما دیں۔ میں جواب میں ہنس دیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پاٹل قریباً رات کے 8 بجے واپس آیا۔ اس نے کیبن میں داخل ہوتے ہی ایک شناختی کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ اس پر لگی میری تصویر اور مجھے خفیہ پولیس کا سب انسپیکٹر بنایا گیا تھا، جس کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ میں حیرت اور تحسین کے ملے جلے جذبات سے اس کا منہ دیکھتے دیکھتے رہ گیا۔ یہ دراصل وہ تصویر تھی جو میری آمد سے پہلے ہی میری پہچان کے لیے مقامی دوستوں کو پہنچائی گئی تھی، اور اب ایک سرکاری محکمے کے شناختی کارڈ پر مہروں اور سرکاری مخصوص نشانات کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ سب انسپیکٹر ترپاٹھی، گلیڈ ٹو میٹ یو۔ مسکراتے ہوئے پاٹل نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیرت ہے مسٹر پاٹل، میں نے اسے داد دی۔ شناختی کارڈ پر درج اپنا نام اور والد کا جعلی نام، اپنے گھریلو ایڈریس اور جسمانی نشانات میں نے ایک نظر ڈالتے ہی حفظ کر لیے تھے، اور کارڈ میں نے پتلون کی پچھلی جیب میں رکھ لیا۔ دیر صرف اسی چکر میں زیادہ ہو گئی، باقی تو سب کام مکمل تھا۔ پاٹل نے صفائی پیش کی۔
इस तस्वीर में मेरे चेहरे से दाढ़ी गायब थी। मैंने सबसे पहले वहीं शेव करके दाढ़ी साफ कर डाली। पाटिल ने अपने मुलाजिमीन को स्टोर बंद करने की हिदायत दी और हम दोनों कार में जा बैठे। कार एक शानदार होटल के सामने जाकर रुक गई। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर हमने लाइट सा चाइनीज डिनर किया और तेज कहवा पीकर बाहर आ गए। अब पाटिल का रुख एक सिनेमा हॉल की तरफ था, जहां उसने अव्वल दर्जे की 2 नशिस्तें महफूज करवा रखी थी। वो असल में रात 12 बजे तक का वक्त गुजारना चाहता था। फिल्म तो नई थी, लेकिन कुछ रश ज्यादा नहीं था। हस्बे रिवायत फिल्म से पहले पाकिस्तानी अफवाज के जाली जुल्म सितम की डॉक्यूमेंट्री चलाई गई और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए 2-4 बेहुदा इश्तिहारात दिखाकर फिल्म चला दी गई। दौरान फिल्म में एक ही बात सोच रहा था, दुनिया में क्या कोई इतनी मक्कार कौम और भी होगी। मैंने यहूदियों को देखा तो नहीं था, लेकिन उनके मुतालिक बहुत कुछ पढ़ सुन रखा था। दूसरी जंग अजीम पर बनने वाली फिल्मों में नाजियों के मुतालिक देख देख कर एक जमाना वो था कि मुझे नाजियों से नफरत सी हो गई थी। हिंदुओं के मुतालिक अपने बुजुर्गों से कहावतें सुन रखी थी। अपने कायदे आजम के मुतालिक जानता था कि वो किसी भी मरहले पर एक लम्हे के लिए भी कांग्रेस पर एतबार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें देखने, समझने और महसूस करने का मौका कुदरत ने अब फराहम कर दिया था। और इस कौम के साथ महज चंद हफ्ते गुजार कर ही ये बात मेरे ईमान का हिस्सा बन चली थी कि रूए जमीन पर इससे ज्यादा मक्कार कौम और कोई नहीं। वो लोग झूठ इस शिद्दत से और इतने मौसर अंदाज में पेश करते कि वाकई वो सच दिखाई देने लगता। अपने टीवी, फिल्मों, रेडियो, खरस इब्लाग आमा के हर मीडियम से वो दिन रात तसलसल से झूठ नशर कर रहे थे। ऐसा झूठ जिसके पांव भी थे, जो अपने कदमों पर चलकर सुनने और देखने वाले तक न सिर्फ पहुंचता था बल्कि उसे वरगलाता भी था। फिल्म के खात्मे पर हम बाहर निकले तो रात के 12 बज रहे थे। अब हमें मजीद 1 घंटा गुजारना था। इस मर्तबा पाटिल की कार का रुख समंदर किनारे बने एक शानदार नाइट क्लब की तरफ था। एक लंबी कतार में हमने भी अपनी कार पार्क की और मैं उतरकर दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन पाटिल लपक कर मेरे पीछे आया। ठहरिए जनाब, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पाटिल ने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और मुझसे मुखातिब हुआ। इस तरफ जनाब, उसने मुखालिफ समत में इशारा किया। आपको अलविदा कहकर मैं यहाँ जरूर आऊंगा, आप तरद्दुद न कीजिए। अब हमें 1 घंटे तक पैदल सफर करना है। उसकी जहानत पर अब मुझे रश्क आने लगा था। हम दोनों पैदल ही सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। इस एरिया में कोस्ट गार्ड्स ड्यूटी करते हैं और अपना कोई यार आजकल इधर नहीं है, इसलिए ज्यादा बोझ आप ही को उठाना होगा। अपने ओहदे का रोब बेझिझक होकर डालिए। वायरलेस पर इंक्वायरी करने पर भी जवाब हाँ ही में मिलेगा। उसने चलते चलते मुझसे कहा। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 मील दूर पहुंचे थे जब उसके अंदाजे के मुताबिक सड़क पर दूर रोशनी का एक फवारा सा छूटा, जिसने अब जीप की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पाटिल रोशनी देखते ही वहां से हट गया। उसका रुख उन खुदरौ झाड़ियों की तरफ था जो सड़क के साथ साथ दूर दूर तक फैलती चली गई थी। मैं इत्मीनान से सीटी पर एक धुन गुनगुनाता अपनी चाल चलता गया। मेरे नजदीक आकर जीप ठहर गई, लेकिन मैं बदस्तूर चलता रहा। ए रुको की आवाज पर मैं उनकी समत घूम गया। एक पेटी अफसर मेरी तरफ मुंह उठाए मुझे घूर रहा था। तुम्हारा कमांडर कौन है? उनके पूछने से पहले ही मैंने सवाल दाग दिया, आप कौन हैं? उस पेटी अफसर ने मुझे बड़ी शाइस्तगी से मुखातिब किया। पहला सवाल मेरा था। मैं ज़ेरे लब मुस्कुराया। मुझे ही जानिए, किस तरफ से पेट्रोल कर रहे हो तुम लोग? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। अपनी शनाख्त करवाओ वरना। उसने होल्स्टर से पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ तान लिया। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी ऑन स्पेशल ड्यूटी। स्पेशल ड्यूटी का जिक्र आते ही उसका पिस्तौल वाला हाथ झुक गया। मैंने जेब से कार्ड निकालकर सामने कर दिया। उसने एक सरसरी नजर कार्ड पर डाली और मुझे लौटा दिया। क्षमा कीजिए, मेरी मौजूदगी को इस इलाके में भूल जाना, किसी पेट्रोल से भी जिक्र न हो। मैंने उसे तंबीह की। स्पेशल ड्यूटी अफसरान की हैसियत यहाँ गेस्टापो जैसी थी, जिसके मेजर से जर्मन बाकायदा अफवाज के कर्नल भी सहम जाते थे, इसलिए उसके सरापे में भी खासा इनकिसार झलकने लगा। ओके सर, उसने एड़ियां बजाई। थैंक यू कहकर मैं आगे बढ़ गया। उन लोगों की जीप भी मेरे साथ ही आगे बढ़ गई। पाटिल जीप के वहां से जाते ही झाड़ियों से निकलकर भागता हुआ मुझसे आ मिला। वेरी गुड, वेरी गुड, उसने मुझे दाद दी।
सब आपकी दया है श्रीमान जी, मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। हम दोनों ने एक साथ कहका लगाया और सुए मंजिल गामजन हो गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम ठीक वक्त पर उस जगह पहुंच चुके थे जहां से मुझे इससे पहले भी एक बार फरार होना पड़ा था। शायद इस इलाके की नौयत ही ऐसी थी कि ज्यादातर गैर कानूनी काम इस तरफ से अंजाम पाते थे। मुझे उस पॉइंट का बिल्कुल इल्म नहीं था जिसे हमने बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करना था। यहाँ भी शायद मास्टर और उनके एक दो खास एजेंट ही उन मखसूस मकामात से आगाह थे जिन्हें मुख्तलिफ नंबर देकर उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए मखसूस कर रखा था। ना तो मैंने पाटिल को यह बताया कि इससे पहले मैं इस इलाके की यात्रा कर चुका हूँ, न ही उसने इस इलाके के मुताल्लिक कुछ दरियाफ्त किया। असल में ये सब लोग अपने काम में माहिर हो गए थे। उन्हें भी मेरी तरह तरबियत की सख्त भट्टियों से कुंदन किया गया था, जहां से निकलकर आने वाला खुद ब खुद एक मखसूस सांचे में ढल जाता है। कोई ऐसा गैर महसूस इशारा भी उनकी गुफ्तगू से नहीं मिलता था जिससे उनकी राजदारी पर जरा सा हर्फ भी आ सके। हर एजेंट दूसरे एजेंट से यही उम्मीद करता था कि वो भी उसकी तरह सिवाय काम की बात के बाकी तमाम बातों से गैर मुताल्लिक रहेगा। मुझे इल्म नहीं था कि मैंने इसके बाद फिर कभी कलकत्ता भी आना है या नहीं। इसके बावजूद मैंने इस जगह का नाम पूछना भी गवारा न किया। हालांकि सड़क के किनारे लगे किसी संगे मील से भी इस तरफ रहनुमाई हो सकती थी। सड़क यहाँ से कम 2 मील दूर थी और अब हम जिस जगह थे वहां तक पहुंचने के लिए तो कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। रेत और कांटेदार झाड़ियों में भी हमारा सफर जारी रहा। रात 1:15 बजे हम बिलाखिर उस जगह पहुंच गए जो हमारा मतलूबा पॉइंट था। कितना सही अंदाजा था पाटिल का। ओके सर, अब आप हमसे रुखसत हो रहे हैं। मेजबानी में कमी हो गई हो तो माफी। उसने रिवॉल्वर होल्स्टर से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया था। ये बात कहते हुए उसका चेहरा तो बिल्कुल गैर जज्बाती था, लेकिन उसके दिल में जो भंवर चकरा रहे थे उनकी शिद्दत का अंदाजा मैं बखूबी कर सकता था। बहरहाल वो इंसान था, अपने मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, और मैं उस पाकिस्तान की तरफ जा रहा था जो उसका वतन था। मेरे दोस्त, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका अजर बहुत सी नस्लें मिलकर भी अदा नहीं कर पाएंगी। तुम बहुत अजीम लोग हो, हमारे तसव्वुरात से कहीं ज्यादा बढ़कर अजीम। आज जो तारीख तुम्हारे जिस्मों पर लिखी जा रही है वो कल जब किताबों में लिखी जाएगी तब शायद तुम तो इस दुनिया में नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे जिंदा जावेद कारनामे आने वाली नस्लों को बावकार जिंदगी गुजारने की राह जरूर दिखाते रहेंगे। ये बात कहते हुए मैंने महसूस किया था जैसे मेरी आंखें नम आलूद हो रही थीं। पाटिल ने तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। हम दोनों ने अपने कोट उतार कर बाजुओं पर दोहरे कर रखे थे। मुझे तो कपड़े खराब होने की परवाह नहीं थी, लेकिन पाटिल को वापस नाइट क्लब पहुंचकर कार भी हासिल करना थी। वो इस सिलसिले में खास एहतियात बरत रहा था। हमने अपने अपने पिस्तौल और टॉर्च हाथों में पकड़ी हुई थी, जबकि 3 हैंड ग्रेनेड किसी मुमकिना आफत से बचने के लिए हमारे सामने मौजूद थे। उनकी कुव्वत बर्बादी आम दस्ती बमों से 2 गुना थी और खुसूसी तौर से ये इन्हीं लोगों के जेरे इस्तेमाल रहते थे। हम दोनों एक कदरे साफ कतई अराजी पर बैठे हुए थे। हमारी नजरें बेचैनी से समंदर के पानियों पर हद्दे निगाह तक फैलती जा रही थीं। दूर दूर तक किसी शय का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। हमसे कुछ फासले पर झाग उड़ाती मौजें साहिल समंदर से बगलगीर होती और वापस अपने पानियों में गर्क हो जाती। ठाठे मारते समंदर का शोर भी पुरसुकून होता है। इन नीले पानियों में कितनी तहजीबें दफन थीं, इसका शुमार शायद कोई न कर सके। चांद समंदर के एक कोने से लहरों के दोष पर सफर करता अब हमारे सरों पर आन पहुंचा था। रात गुस्ले महताबी फरमाने लगी थी जब समंदर की लहरों के शोर पर एक तेज रफ्तार बोट का शोर गालिब आने लगा। हिचकोले खाती और तेज रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ती कश्ती अब नुमाया होने लगी थी। मैं फौरन अपनी जगह से परे हट गया। अपनी जगह से उठते हुए हैंड ग्रेनेड उठाना नहीं भूला था। बाकी दोनों ग्रेनेड्स पर मुझसे पहले उसका हक था। एक ताकतवर टॉर्च सामने वक्फे वक्फे से रोशन हुई। जवाब में पाटिल ने भी वही अमल दूसरे रंग की रोशनी फेंकते हुए दोहराया। कश्ती का रुख अब किनारे की उसी तरफ हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग साहिल के बिल्कुल करीब आ गए। साहिल के कुछ फासले पर ही गोताखोरी के लिबास में एक साये ने पानी में छलांग लगाई और पानी के अंदर ही अंदर सफर करता वो साहिल के करीब पहुंचकर पानी से बरामद हुआ। वो चलता हुआ हमारे करीब आ रहा था। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी।
कुछ फासले पर रुककर उसने अपने लिबास में से वाटरप्रूफ टॉर्च निकाली और एक मखसूस अंदाज से रुक रुक कर रोशनी को घुमाते हुए पाटिल को नया सिग्नल दिया। उधर से भी ऐसा ही जवाब मौसूल हुआ तो उसने टॉर्च दोबारा अपने लिबादे में छुपा ली। अब वो दोनों हाथ ऊपर उठाए हमारी समता रहा था। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने उसे हैंड्स अप का हुक्म दिया हो। खुश्की पर आकर वो इसी पोजीशन में रुक गया। फिर मैंने पाटिल को झाड़ियों की ओट से बरामद होते देखा, जिसने नौवारिद की तरफ पिस्तौल तान रखा था। दोनों के दरमियान कोड वर्ड्स का तबादला हुआ और अपनी पहचान मुकम्मल करवाने पर उसने हाथ गिरा दिए। पाटिल ने मेरी समत हाथ के मुख्तलिफ अंदाज से सेफ सिग्नल दिया और मैं अपनी जगह से बाहर निकल आया। बाजवा, नौवारिद ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। उसके बाद मैंने उससे अपनी शनाख्त का मरहला तय किया और मुतमईन होने पर मैंने पाटिल को भी मुतमईन कर दिया। मोटर बोट का इंजन बंद हो चुका था और वो पानी पर दाएं बाएं हिलकोरे ले रही थी। जैसे ही मैंने ओके कहा, नौवारिद ने बोट की तरफ टॉर्च से सिग्नल भेजे और उसका इंजन जाग उठा। कम गहरे पानियों के नजदीक वो रुक गई। कम ऑन सर, बाजवा ने इशारा किया। पाटिल की तरफ रुख करते हुए मुझे इस बात का बखूबी एहसास था कि उसकी आंखें मुझसे क्या कहेंगी। शायद इसीलिए मैं उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं पा रहा था, लेकिन उसने मेरे हाथ को झटका दिया तो मैं टूटी हुई शाख की तरह उसके सीने से टकरा गया। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने हद्दुल वसा अपने जज्बात पर काबू पाए रखा। वक्त ने कदम कदम पर मुझे फितरी इंसानी कमजोरियों का एहसास दिलाया था। तरबियत आपके जिस्म को मोम से पहाड़ का तो बना सकती है, लेकिन दिली जज्बात नेचुरल ही रहते हैं। ये पत्थर दिल वाली इस्तिलाह जो कमांडोज से मुतालिक सुनने में आती थी, बिल्कुल गलत साबित हुई थी। फौजियों के दिल आम सिविलियन की तरह ही धड़कते हैं, शायद इसलिए कि वो भी पहले इंसान और उसके बाद कुछ और हैं। मुझसे जुदा होते वक्त पाटिल को शायद उन लम्हों ने दुखी कर दिया हो जो उसके हमवतन को उसके देश की तरफ ले जा रहे थे, जबकि मेरा दिल इसलिए फट रहा था कि पाटिल ने अपनी मिट्टी से जुदाई का रोग कब से अपने अंदर पाल रखा है। फी अमानिल्लाह। उसने ही हिम्मत करके पहल की और मुझसे अलग हो रहा। आपके लिए तोहफा जनाब। नौवारिद ने प्लास्टिक के लिफाफे में पैक एक पाकिस्तानी सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। गो मैं वहां से परे हट गया था, लेकिन चांद की रोशनी में पाटिल के चेहरे की बदलती कैफियत मुझ पर बखूबी अयां थी। उसने किसी मुतबर्रक शय की तरह उसे चूमा, आंखों से लगाया, फिर बड़े दुखी दिल से उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने सिगरेट केस में मुंतकिल कर लिए और डिबिया को समंदर की लहरों की नजर कर दिया। बाजवा ने भी उससे गर्मजोशी से मुसाफा किया और हम दोनों पानी में उतर गए। जब मोटर बोट अपनी जगह से हिली तो चांद बादलों में छुप रहा था और चांद नगर का मुसाफिर रेत पर अपने पांव के निशान गाड़ता वहां से दूर ही दूर हटता चला जा रहा था। बिजली की सी सुर्रत के साथ बोट आगे बढ़ी और जब सतह समंदर पर बिछे एक तख्ते पर चलते हम आबदोज में पहुंचे तो मोटर बोट उसके पेट में समा गई। आबदोज के कैप्टन बनफ्से नफीस मेरे इस्तकबाल के लिए सामने खड़े थे। बहरिया के जियालों ने बारी बारी मुझे गले लगाया और उस केबिन तक मेरी रहनुमाई की जहां हैरतों का एक नया बाब मुझ पर वाह होने वाला था। अमले के दूसरे अरकान तो बाहर ही ठहर गए। मैं केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक साहब नेवी की वर्दी में मलबूस लकड़ी की दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो मेरी तरफ घूमे तो अचानक खुशी और हैरत से मेरी जबान गंग रह गई। मेरे सामने मेरे इंस्ट्रक्टर खड़े थे। सर, मैं जैसे सिसक पड़ा। सर की आगोश में समाकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने मदार से भटका हुआ कोई सैयारा हूं जो घूम घुमा कर बिलाखिर अपने मदार पर पहुंच गया है। इस वापसी की लज्जत कैसी निराली थी। बैठो बेटे। उन्होंने मुझे सामने रखे पलंग पर बैठने का इशारा किया। मामला ठीक रहा ना? उन्होंने मेरी तरफ तशवीश की नजरों से देखा। जी सर, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। कैसा रहा तजर्बा? शानदार। बड़े खुशकिस्मत हो यार, हिंदुओं में घूम फिर आए। उन्होंने माहौल को जरा गैर संजीदा करने के लिए मेरे कंधे पर हस्बे तवक्को हाथ मारा। ये तो है सर, आप सुनाइए अपनी तरफ कैसा चल रहा है? मैं तो जाने कब से पूछने के लिए बेचैन था। मेरे सवाल ने सर को कुछ दुखी सा कर दिया। उनके खूबसूरत चेहरे पर संजीदगी की एक तह सी जम गई। बेटे, हमें एक तवील और सब्र आजमा लड़ाई लड़ना होगी। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, उम्र वफा करे न करे। अब ये मामला तुम ही को संभालना होगा। उनकी बात के आखिरी फिक्रे ने जैसे मेरे कलेजे पर हाथ डाल दिया। मेरा जी चाहा उनसे चीख चीख कर कहूं,
سر خدا کے لیے ایسا مت کہیے، آپ کے حوصلے ہم سے زیادہ جوان ہیں، آپ کی رہنمائی میسر نہ آتی تو ہم شاید اب سے بہت پہلے صبر کا دامن چھوڑ چکے ہوتے۔ جب کسی یونٹ میں پیٹرول پر جانے والے کسی جوان کی لاش پہنچتی تھی جسے مکتی باہنی نے دھوکے سے مارا ہوتا تھا تو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا، لیکن ان کے بپھرے جذبات کے منہ زور گھوڑوں کو سر ایسے ہی لگام دیا کرتے تھے۔ میرے بچوں، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، جلد ہی کرودھ اور نفرت کی یہ کالی گھٹا چھٹ جائے گی، تب ہر طرف امن ہی امن ہوگا، ہم سب پھر ایک ہی تھالی میں کھائیں گے، ایک ہی گھر میں رہیں گے، ان شہیدوں کے خون کے صدقے ہماری دعائیں ضرور مستجاب ہوں گی۔ صبر کرو، صبر، یہ ورغلائے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، انہیں جلد ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہم ان کے اپنے ہیں۔ ہر یونٹ میں ہر روز کوئی نہ کوئی سر اپنے جوانوں سے ایسے خطاب کیا کرتا تھا، لیکن آج یہ پژمردگی کیوں چھا رہی تھی میرے سر کے چہرے پر؟ ان کی آواز میں وہ رات کیوں نہیں کڑک رہی؟ خدایا، کیا ہم سب روحانی طور پر آہستہ آہستہ مر رہے ہیں؟ اس سے آگے میں کچھ نہ سوچ سکا، کیونکہ اچانک کیبن کی لائٹ آف ہو گئی تھی اور ایک تیز وسل کی آواز وہاں گونجنے لگی تھی۔ کیبن پر بھی لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ شاید کسی خطرے کی آمد کا اعلان تھا اور آبدوز غوطہ لگا کر سمندر کے فراخ سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں کیپٹن کی ہدایات سنائی دینے لگیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، صرف اتنا ہوا کہ سر بھی میرے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ لگے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سرہانے رکھی ٹارچ نکال لی اور میں نے اپنے جسم سے وطن کی امانت کا بار الگ کر لیا۔ پھر ٹارچ کی روشنی میں میرے انسٹرکٹر ان اہم کاغذات کا جائزہ لینے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔